Hello students, you are welcome in the online classes of UVPS. As we know that corona pandemic is making lots of damage to our country. Not this pandemic is limited to our country, but it is rolling up to the entire world. So we stay at home and safe, but at the same time we have to fill up our internal of study that the academic damage or loss. So the management of our school has been planned to motivate you so that your interest and the losses could be recovered in time. So in the first video of SST, we are going to learn the first chapter of class 10, which is the rise of nationalism in Europe. So before we set out to thoroughly study this chapter as per your prescribed textbook content, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेशनलिज्म है क्या, व्हाट इज नेशनलिज्म एंड व्हाट आर दोज थिंग्स और एलिमेंट्स दैट मेक अप द definition of nationalism and what are the different elements that contributed to the growth and development of nationalism in our country as well as around the world. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग परिभाषित करेंगे व्हाट इज नेशनलिज्म. व्हाट इज नेशनलिज्म? This is very important to understand before studying this chapter. As we know that before the 18th century, or more specifically saying before the middle of the 19th century, there were monarchical form of government throughout the world, including all countries of the world. So we have today world is a democratic world. We have a democratic republic government almost in all countries around the world. While before the 18th century, कहने का मतलब यह है कि 18वीं शताब्दी के पूर्व दुनिया भर में जितने देश थे वो सब राजतंत्रात्मक थे, जिसको हम कहते हैं मोनार्की, मोनार्किकल form of government. What was bad there in the monarchical form of government that led to the extermination or acceleration of these form of governments? Why did people did away with this form of government? It is very important to know for the better understanding of nationalism and what was good there in the nationalism. So if we recall the first chapter of the class 9 textbook of history, that is the French Revolution, we know that the rule of law means the rule of equality, because if where there will be no equality, there will be no rule, and inequality always create dissatisfaction, hatred, jealousy in the society. समाज में अगर असमानता है तो हम लोग जानते हैं कि असमानता जिस समाज में होती है वो समाज अस्थिर होता है, लोगों में असंतोष पनपता है, और जिसकी वजह से तमाम प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकट जो है इन परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं. If we have a glance on the backgrounds that created the French Revolution, so we shall find that before 1789
the French society was divided into three states. The first state was of clergy, and the second state was of nobility, while the third one was of the middle class. The third state was of the middle nobility, and the ordinary or general class, we can say general class, the ordinary class, in which the first two were free from all kinds of obligations while enjoy all kinds of privilege in the society. ये ऊपर के जो दो क्लास थे फ्रांसीसी समाज के, हर प्रकार के विशेषाधिकारों से युक्त थे। इनको तमाम प्रकार के रिलैक्सेशन और मुक्तियाँ प्राप्त थी, जैसे कि इनको टैक्स नहीं देना था, सारा टैक्स जो है थर्ड स्टेटस से लिया जाता था, थर्ड क्लास से, थर्ड स्टेट से जो है। अब क्लर्जी में ऑल दी क्लर्जीमेंस वेर इंक्लूडेड, जितने चर्च के थे आदमी, चर्च के जितने पदाधिकारी थे वो सब फर्स्ट क्लास में थे। नोबिलिटी में रॉयल फैमिली के जितने लोग बिलोंग करते थे वो लोग थे, उन्हें किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। एंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज वेर ओन्ड बाय दी टू क्लास। वी कैन से दैट अबाउट 80% ऑफ द टोटल रिसोर्सेज in the French society were owned by these two particular set of classes. The third strata was one and only pivotal key that was running up the entire economic burden, entire economic obligations. फ्रांसीसी समाज का ये जो तीसरा पायदान था वही फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था की धुरी थी और वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। हर प्रकार के आर्थिक जो दायित्व थे उनका निर्वहन सिर्फ इसी तीसरे वर्ग को करना पड़ता था। तो एक तरह से ये विशेषाधिकार ही, इसे किसी भी प्रकार का जो है विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इसमें भी तीन क्लास थे। एक क्लास था आपका बिजनेसमैन का, बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, बड़े बड़े बिग ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन। एंड सेकंड में आपके थे पीजेंट्स एंड फार्मर, पीजेंट्स एंड फार्मर्स। और थर्ड में आपके जो थे वो स्मॉल फार्मर थे, छोटे छोटे किसान, लैंडलेस लेबरर, भूमिहीन श्रमिक थे। और इसके साथ साथ आपके जो है लेबर थे, या फ्यूगल जो है लेबर आप कह सकते हैं इनको। So this entire social system of the French society that was existing before the 1789 was called old regime. इसको old regime कहा जाता था, old regime। तो आपने पढ़ा था 9th में कि किस तरह से वहाँ पर लुई 16 के ज़माने में क्रांति हुई, तमाम प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों की वजह से किस तरह से वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ और फ्रांस में जो है रिपब्लिकन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है शासन की जो है स्थापना हुई। तो इस संदर्भ में आपने देखा था कि 1804 में 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड को डिवाइस किया, जिसके तहत तमाम प्रकार के आर्थिक सुधार किए गए, जिसमें improvement in the weight and measure system, removal of all kinds of tariff and trade restriction, तमाम प्रकार से व्यापार पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनको समाप्त किया नेपोलियन ने। वेट और मेजर्स में जो तमाम प्रकार के डिफरेंसेस थे रीजन टू रीजन, उन सबको समाप्त किया गया। प्रिंसिपलिटीज़ का जो है यूनिफिकेशन किया गया। और राज्य विस्तार के बाद जो है नेपोलियन ने इस तमाम प्रशासनिक सुधारों को फ्रांस से बाहर अपने विजित प्रदेशों में भी लागू करने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज में जब भी असमानता पैदा हुई है, और फ्रांस को जो है तब तक जो है जब भी समाज में असमानता की स्थिति पैदा हुई है तब तक जो है
क्रांतियाँ हुई हैं और उन क्रांतियों के द्वारा ही जो है राष्ट्र की स्थापना हुई है। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि पूरे यूरोप में किस प्रकार से नेशन स्टेट की स्थापना हुई। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल लर्न, हमने जैसा कहा कि व्हाट इज नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म, we can say that nationalism can be defined as a sense of belongingness to one nation। जब हमें देश के प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है कि ये हम एक राष्ट्र से हैं, तो इस अनुभूति को ही जो है राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हम कह सकते हैं सेंस ऑफ belongingness, sense of belongingness to one nation, to one country or nation is called नेशनलिज्म। इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस नेशनलिज्म वाज क्रिएटेड, हाउ दिस सेंस इज क्रिएटेड, व्हाट आर दोज थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू क्रिएट दीज फीलिंग्स आर स्प्रिट अमंग द पीपल्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर रीजन। तो वी लर्न दैट बिफोर द 18th century the great kingdoms or empire were subdivided into different territorial principalities around the Europe। पूरे यूरोप भर में छोटे छोटे राज्य, यूरोप जो है छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था तमाम, जैसे फ्रांस, इटली, ऑटोमन एम्पायर एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो छोटे छोटे राज्य थे, they were independent, they have distinct sets of economy, they have distinct set of politics, they have distinct sets of social systems। So each regions of principality differ from one another, and each principality have developed a kinds of jealousy to the others, and the imperialistic forces were active upon all। इन सब के अंदर जो है एक दूसरे के प्रति बैर भाव या शत्रुता की भावना जो है रहा करती थी इन तमाम छोटे छोटे राजाओं के अंदर जो इस पर शासन करते थे। इनकी खुद की अपनी अलग आर्थिक व्यवस्था होती थी, खुद की अलग राजनीतिक व्यवस्था होती थी, खुद इनका अलग से सामाजिक व्यवस्था होती थी, इनकी कोई अलग पहचान नहीं होती थी। और इसलिए जो है यहाँ पर जो है there were only two relationships, they were superior and subordinate। यहाँ पर केवल दो संपन्न थे, वरिष्ठ और कनिष्ठ का, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। द किंग एंड द रॉयल फैमिली, राजा और उसका राज परिवार, वो जो थे सुपीरियर माने जाते थे, जिन्हें हम राजा कहते थे, एंड रेस्ट वेर कॉल्ड सब्जेक्ट, और बाकी सब सब्जेक्ट्स। तो the basic contents of nationalism like equality, liberty, fraternity, ये सब जो एलिमेंट थे that were missing in the monarchical form of government। वो राजतंत्र में ये सब एलिमेंट्स नहीं होते थे, जैसे समानता, लोकतंत्र की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है, स्वतंत्रता ये भी नागरिकों को नहीं प्राप्त थी, फ्रेटर्निटी भी लोगों को प्राप्त नहीं थी, विश्व बंधुत्व की भावना नहीं रहती थी, जितने राजा थे सब स्वतंत्र थे, सबका अपना सिस्टम था। इन ऑर्डर टू दीज डिफरेंसेस फ्रॉम रीजन टू रीजन्स वे आर क्रिएटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम एंड अरेस्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन आर द पीपल। लोगों का जो ग्रोथ, व्यापार में तमाम तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे, ट्रेडर्स वेयर नॉट फ्री, दे हैव टू पे लॉट्स ऑफ कस्टम ऑन द बॉर्डर,
बॉर्डर पर उन्हें जो है तमाम तरह के जो है कर देने पड़ते थे, इसलिए व्यापार में फायदा नहीं होता था, लाभ नहीं होता था, तो व्यापार आगे नहीं बढ़ता था। इकोनॉमी ज़्यादातर क्लोज थी और लोगों को जो कॉम्परेटिव एडवांटेज है उसका लाभ सबको नहीं मिल पाता था। तो ये तमाम वजहें थी जिनकी वजह से और तमाम सामाजिक विसंगतियों के कारण धीरे धीरे समाज में जो थर्ड स्टेटस था उसकी कमर टूट गई थी और वो जो है इसके खिलाफ असंतोष की भावना मुखरित करने लगा। और हुआ ये कि लास्ट टाइम में आपने देखा कि 1789 में किस तरह से क्रांति का आगाज हुआ और फ्रांस में जो है एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है नेशनल असेंबली की स्थापना हुई, चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार बनी और इस तरह से वहाँ पर जो है पहली बार जो है लोकतंत्र का जन्म फ्रांस में हुआ। तो इस चैप्टर में when we shall begin with this chapter the rise of nationalism in Europe, तो हम देखेंगे कि there is a figure in your textbook. When you will see this textbook, this image or figure, then you will see that there is a Statue of Liberty in the USA, where a woman is holding the charter or the constitution in one hand, constitution book in one hand, and illuminating light in the other hand. This very painting was painted by the फ्रेडरिक सूरी in 1848. ये जो पेंटिंग है उसको फ्रेडरिक सूरी ने, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 जो है प्रिंट्स बनाए हुए थे और उस सीरीज का एक प्रिंट है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसके चारों तरफ लोग लंबी कतारें बना के उसकी तरफ घूम रहे हैं और हाथ में नीचे जो है रिमेन्स हैं मोनार्की के और जो राजतंत्र की जो अवशेष हैं, जिसके ध्वसावशेष है जो टूटा हुआ, मतलब कि एक तरह से लोकतंत्र का जो है खंडहर आप कह लीजिए, उसके नीचे बनाया गया है। बुक में आप देखेंगे तो in 1848 Frederick Soury, a French artist, prepared a series of 4 paintings visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics. So this very painting was a kind of utopia. ये जो पेंटिंग थी वो एक तरह की यूटोपिया थी। फ्रेडरिक सूरी ने एक कल्पना की थी कि किस तरह का विश्व होना चाहिए और उसमें उसने दिखाया था कि विश्व ऐसा होना चाहिए जिसमें एक राष्ट्र हो। उसमें उसने राष्ट्र की संकल्पना की थी। दैट वाज इनिशिएटेड ऑलरेडी इन द फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में उससे पहले ही स्थापित हो चुका था। 1789 में फ्रांस को एकीकृत करके एक राष्ट्र नेशन स्टेट के रूप में विकसित किया, स्थापित किया जा चुका था। वहाँ पर राजतंत्र का अंत हो चुका था। फॉलोड बाय यूएसए, दूसरा स्टेट ऐसा था अमेरिका था, and the Germany, Italy, Poland, Switzerland, Hungary, they were in the queue yet to be formed into the nation state. अभी इन स्टेट्स को नेशन स्टेट के रूप में एकीकृत किया जाना शेष था और ये सारे देश। तो here the concept that was printed or carved by the Frederick Soury was that each nation मस्ट हैव ए यूनिक आइडेंटिटी। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी कुछ एक पहचान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एवरी नेशन मस्ट हैव एन इमेज ऑफ मदरलैंड और फादरलैंड। हर देश की माँ या उसके पिता, जिसमें दी कॉन्सेप्ट ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटोयन, नागरिक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि प्रत्येक राष्ट्र के जैसे अपने देश में है भारत माता की छवि, स्त्री के रूप में दिखाया जाता है, प्रिंट किया गया है। उसी तरह प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक जो है इमेज होनी चाहिए। दूसरी उन्होंने कहा कि एवरी नेशन मस्ट हैव इट्स फ्लैग, हर राष्ट्र का अपना एक ध्वज होना चाहिए। एंड सेकेंडली, ईच स्टेट मस्ट हैव इट्स नेशनल लैंग्वेज, और हर राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। एंड दीज यूनिक आइडेंटिटी
शुड फॉर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन स्टेट। और जहाँ जिस क्षेत्र में इस तरह की जो है विशेषताएं मिलेंगी वो देश एक राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। तो ये फ्रेडरिक जो है सूरी के विचार थे। इसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एज एंड सोशल क्लासेस एंड द ट्रेल्स विच इज अराउंड टेकिंग अराउंड विच इज ट्रेलिंग अराउंड द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। और जो लोगों की जो भीड़ है जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी के चारों तरफ घूमते हुए आप देखेंगे बुक में, उसमें सबसे आगे अमेरिका है, उसके बाद फिर फ्रांस है, फ्रांस है, उसके बाद अमेरिका है, और उसके नीचे आप देखेंगे कि जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि उसके एक हाथ में मसाल है, दूसरे हाथ में जो है संविधान की बुक लिए हुए हैं। तो जो इस बात का द्योतक है कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का ये प्रतीक है। और इसके साथ आप देखेंगे कि ऑन दी अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज, और इस तस्वीर के सामने, इस इमेज के सामने आप देखेंगे कि कुछ अवशेष आपको टूटे फूटे जो है दिखाई दे रहे हैं, और सेटेड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। ये जो अवशेष हैं टूटे फूटे, वो किस चीज के प्रतीक हैं? वो राजतंत्र के समाप्ति है, उसके जो है नष्ट होने के प्रतीक है, उसके ध्वंसावशेष है। मतलब जब जैसे किसी चीज को नष्ट कर दिया जाता है तो उसके कुछ अवशेष जो है बिखरे होते हैं, उसी को नीचे इसमें दिखाया गया है। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस, एब्सोल्यूटिज्म किसे कहते हैं, ये चीज ये भी हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट शासन किसे कहते हैं। एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच पावर इज नॉट being shared among different levels of government. Absolutism. ये क्या है? एब्सोल्यूट मतलब निषेधाधिकार। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब हो कि निरपेक्ष सरकार। निरपेक्ष सरकार वो सरकार होती है जो अपने पावर को किसी से भी शेयर नहीं करती है। ऑल दी अथॉरिटीज and power, all the authorities and power are concentrated in one hand। तो ये फीचर किसकी है? मोनार्की की है। तो जो ये ध्वंसावशेष आपको द सेटर्ड आपको चीजें दिखाई दे रही हैं इमेज के सामने, वो मोनार्की के समाप्ति का जो है प्रतीक चिन्ह है। इन सूरी यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। और सूरी ने जिस आदर्श राष्ट्र की संकल्पना की थी उसको यूटोपियन विजन कहा गया है। That is not really existing right then। इसका यूटोपियन एक ऐसा, यूटोपियन शब्द का मतलब होता है कि एक ऐसी आदर्श स्थिति जो व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में ना। उन्होंने एक ऐसे आदर्श राष्ट्र की जो संकल्पना की थी उसमें दिखाया गया था कि जितने लोग हैं वो सब एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत हुए हैं, आइडेंटिफाइड थ्रू दियर फ्लैग, जिनका अपना अपना ध्वज है, झंडा है, नेशनल कॉस्ट्यूम, और सबके राष्ट्रीय परिधान है। कॉस्ट्यूम माने परिधान, जैसे वेशभूषा या गणवेश सब पहने हुए हैं। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टेचू ऑफ लिबर्टी और द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड। इसमें जो देश इसकी परिक्रमा कर रहे हैं इस इमेज की, स्टेचू ऑफ लिबर्टी की, जो कि शांति की एक प्रतीक है, वो है यूनाइटेड स्टेट, स्विट्जरलैंड। एंड बाय दिस टाइम वेयर ऑलरेडी नेशन स्टेट। अब तक जो है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑलरेडी नेशन स्टेट के रूप में संगठित हो चुके थे। आइडेंटिफिएबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर। फ्रांस का अपना एक तिरंगा था, रेड वाइट एंड जिसमें ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग ऑफ जर्मनी।
सूरी क्रिएटेड दिस इमेज, द जर्मन पीपल डिड नॉट एट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अभी जर्मनी, इटली, पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, अभी ये देश जो है राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी सूरी ने पहले से ही कल्पना करके इन राष्ट्रों को एक गणराज्य के रूप में इस जो है इमेज में, इस पिक्चर में उन्होंने दिखाया था। Following the German people or the peoples of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. From the heavens our Christ sends and angels gaze upon the sea. और इसमें इस चित्र में अभी दिखाया गया है कि क्राइस्ट के जो दूत हैं वो ऊपर से इस सारे नज़ारे को देख रहे हैं। That symbolize the fraternity among the nation of the world, जो कि सूरी ने इस जो है प्रकरण का उपयोग जो है लोगों के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना को प्रदर्शित करने के लिए किया है। तो दिस चैप्टर विल डील विद द मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सूरी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो अभी जो चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, कि राष्ट्रवादी सोच कहाँ से पैदा हुई और कैसे पैदा हुई, इसको निर्धारित करने वाले फैक्टर कौन कौन से थे, व्हाट वर दो सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन दैट लेड टू द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन द यूरोप, वी शैल डील इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।